بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسٹرولوجی وتھ سمیہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو ہی انشاءاللہ نئے ہفتے کا آغاز ہوگا تو ہم رمضان کے دوسرے عشرے میں بھی داخل ہوں گے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو کوشش کریں پروردگار سے قریب رہیے، روحانیت سے قریب رہیے، اور انشاءاللہ آپ کی دلی مراد پوری ہوگی اس بابرکت مہینے کے صدقے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ویکلی ہاروسکوپ کے بارے میں بتائیں گے کہ 10 سے لے کر 16 مارچ 2025 یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے آج کے اس ویڈیو میں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ایسٹرولوجی وتھ سمیہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ سب سے پہلا برج ہمارا ہے برج حمل ایریز۔ ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ انشاءاللہ کچھ سرپرائزز آپ کو مل سکتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ طور پر، جو آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ خوشی آ سکتی ہے آپ کی زندگی میں۔ فائنینشلی لحاظ سے آپ کا گراف ہائی رہے گا، سیونگز خوب کر پائیں گے، اور ڈفرینٹ ذرائع سے آپ کو پیسے آئیں گے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے گھر کے رینوویشن کے لیے بھی آپ خرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کہ آپ کو دلی خوشی بھی مل سکتی ہیں اس رینوویشن سے، اور کچھ چیزیں آپ اپنے گھر کے لیے خرید سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ اور ازدواجی معاملات آپ کے اسپاؤس کے ساتھ یہ ہفتہ انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے۔ بہت زیادہ مصروفیت سے بڑا ہفتہ آپ گزاریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کہیں مہمان بن کے جا سکتے ہیں۔ تو آنے والے ہفتے میں صحت کے معاملات پہ اگر ہم بات کریں تو صحت بھی بالکل آپ کی ٹھیک رہے گی، لیکن آپ نے سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہوئے اپنے ٹانگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ٹانگوں میں چوٹ، کوئی موچ آپ کو آ سکتی ہے، سو بی ویری کیئرفل۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آنے والا ہفتہ ایگزامس جو آپ نے اسپیشلی دیے ہوئے ہیں، ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس آئیں گے، لیکن آپ نے اپنی محنت جاری بھی رکھنی ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں مزید آپ کو پیسے آئیں گے، تو آپ کا مالی گراف بہت ہی اچھا رہے گا۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ آتے ہیں دوسرے برج کی طرف، برج سور ٹورس۔ ٹورینز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے کچھ ڈفرینٹ چیزیں لا رہا ہے۔ بہت زیادہ مال آپ کما سکتے ہیں، یا بہت زیادہ خوشیاں کما سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کو بالکل سیٹسفیکشن محسوس ہوگی۔ آپ کی کوئی چھوٹی موٹی خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی اس ہفتے نظر آ رہی ہیں۔ تو یہاں پہ جا کر آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ روحانیت سے قریب رہیے، پروردگار سے قریب رہیے۔ آپ کو کامیابیاں ملتی چلی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ مزید کامیابیاں ملے گی، لیکن اس ہفتے آپ نے یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ پیسے آپ کو آئیں گے، لیکن آپ کا خرچہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے تھوڑی بہت احتیاط کر کے اپنے خرچے کو استعمال کرنا ہے، اور سیونگز کو تو بالکل بھی آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اور صحت کے معاملات پہ اگر ہم بات کریں تو انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں صحت کے معاملات آپ کے بالکل ہی ٹھیک رہیں گے۔ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تھوڑا بہت ہلکا فلو، بخار آپ کو ہو سکتا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، ادروائز کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ صحت کے معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے، اور ازدواجی معاملات آپ کے اسپاؤس کے ساتھ وہ بھی ٹھیک رہیں گے، لیکن آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ گھر میں اپنے رویے کو صحیح رکھے۔ تھوڑی بہت جو کام کا پریشر آپ پہ ہے، کام کا ورک لوڈ آپ پہ ہے، تو اس سے بہت چڑچڑاپن آپ کو اس ہفتے دیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن آپ نے کنٹرول کر کے چلنا ہے، تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں گے۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے آنے والا ہفتہ ملٹیپل ہفتہ آپ کے لیے رہے گا۔ بہت زیادہ ورک لوڈ، اور گھر میں مصروفیت، کام میں مصروفیت، اور بہت زیادہ ورک لوڈ آپ کو چڑچڑے پن کی طرف لے جا سکتا ہے، لیکن یہ وقتی طور پر ہوگا۔ بہت زیادہ آپ کو سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا پیشن سے کام لے، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ ورک لوڈ ٹیمپرری طور پر ہوگا، اور آگے جا کر وہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اب اگر آپ کا
स्पाउस के साथ रिलेशन देके आपके इज़्दिवाजी मामलात पे अगर हम बात करें तो आपके इज़्दिवाजी मामलात काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रहे हैं पहले की निस्बत। पहले जो घर का माहौल ख़राब हो चुका था, चाहे वो माली लिहाज से था, चाहे वो आपके बिहेवियर से था या आपके स्पाउस के बिहेवियर से था, इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में आपके इज़्दिवाजी मामलात में जितने भी रुकावटें थी वो तमाम ख़त्म होंगे। घर का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन आपने एहतियात करके चलना है। वर्कलोड की वजह से चिड़चिड़ापन आपको हो सकता है, तो आपने ख़ुद पर कंट्रोल रखना है। पेशेंस से काम ले, सब्र से काम ले, तो आपके लिए मामलात बेहतर होंगे। और इसके साथ ही कारोबारी हजरात के लिए भी आने वाला हफ्ता आपके कारोबार में बरकत आएगी, आपके कारोबार में बेहतरी आएगी और आपको आमदनी के ज़राए भी मिलते चले जाएंगे और एक अच्छा खासा आपकी आमदनी में इजाफा होगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए भी आने वाला हफ्ता आपने कोशिश ये करनी है कि मेहनत अपनी बिल्कुल जारी रखें। अगर आप कामयाबियाँ चाहते हैं तो बग़ैर मेहनत की कामयाबियाँ नहीं मिल सकती हैं। तो खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। चौथा बुर्ज हमारा है बुर्ज सरतान, कैंसर। कैंसरियंस के लिए आने वाला हफ्ता गेट रेडी, कुछ डिफरेंट चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगे। कहीं नई मुलाकात आपकी हो सकती है, नए लोगों से आपका मिलना जुलना हो सकता है, या आप कहीं नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए भी जा सकते हैं, जिसे एक अच्छा खासा टाइम आप गुजारेंगे और ये टाइम आपके लिए यादगार भी रहेगा। चाहे कहीं की जगह पे आप जाएंगे, वो जगह आपके लिए यादगार बन सकता है, या किसी से मुलाकात हो सकती है, वो मुलाकात भी आपके लिए यादगार बन सकता है। और साथ ही साथ बिजनेस के हवाले से कारोबारी हजरात के लिए आने वाला हफ्ता आपको हौसले की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपने एक्साइटेड नहीं होना है और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। कोई भी कारोबार अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसमें आपको हौसला चाहिए, उसमें आपको सब्र चाहिए। एकदम से आपको फ़ायदा, आपको कामयाबियाँ नहीं मिल सकती हैं। स्लोली एंड स्टडी यू विल विन द रेस। और इज़्दिवाजी मामलात पे अगर हम बात करें तो इज़्दिवाजी मामलात आपके स्पाउस के साथ ठीक रहेंगे, लेकिन माली लिहाज से घर में जो हल्की पुल्की नोक जोक चल रही हैं वो बदस्तूर उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती है। वो फ़िलहाल वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इस मसले से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा आपने कोशिश ये भी करनी है कि अपने से रिलेटेड जितने भी लोग आपसे वाबस्ता है उनके ख्वाहिशात की ज़िम्मेदारी आप पर है। मेहनत अपनी जारी रखे, कोशिश अपनी जारी रखे, परवरदिगार आपको आपकी मेहनत का सिला लाजमी देगा। और इसके अलावा कैंसरियंस, आपकी सेहत के हवाले से ये हफ्ता बिल्कुल ठीक हफ्ता रहेगा, लेकिन आपने ओवर ईटिंग की तरफ नहीं जाना है, वरना आपका निज़ाम थोड़ा डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बी वेरी केयरफुल, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ज़्यादा आपने खाने की तरफ बिल्कुल आप खाए, लेकिन नॉर्मल होके खाए, बहुत ज़्यादा आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी है। और इसके साथ ही आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह कुछ डिफरेंट चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। पांचवा बुर्ज हमारा है बुर्ज असद, लियो। लियोस वालों के लिए आने वाला हफ्ता डिफरेंट चीज़ें आएंगे आपके लाइफ में, तो बी वेरी रेडी। इंशाल्लाह कुछ नई जगह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों से आपकी भी मुलाकात हो सकती है और वो मुलाकात आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहेगा। और इसके साथ ही आने वाले हफ्ते में आपका फाइनेंशियल ग्राफ हाई रहेगा। पैसे आपको आ सकते हैं और कहीं से भी आ सकते हैं जहां से आपने सोचा भी नहीं है। और इसके साथ ही इंशाल्लाह वर्क प्लेस में आपके काम को सराहा जाएगा। आपकी इज्जत वक़ार में इजाफा होने का टाइम है। आप अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह आपके उभरने का वक्त आ गया है और चमकने का वक्त आ गया है। और इसके साथ ही कारोबारी हजरात के लिए भी आने वाला हफ्ता आपके लिए एक बेहतर हफ्ता है। थोड़े बहुत आप
آپ نے جو سیونگز کی ہوئی تھی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ آپ کے پیسوں کے ذرائع بنتے چلے جا رہے ہیں. پیسے آپ کو ڈفرینٹ ذرائعوں سے آئیں گے. لیکن اس ہفتے تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کی والدہ کی صحت تھوڑی بہت ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو آپ نے اپنے والدہ کی صحت پر بہت زیادہ فوکس رہنا ہے اور میڈیکیشن پہ ان کا خرچہ بھی ہو سکتا ہے، تو بی ریڈی فار دیٹ. لیکن اللہ نہ کریں، انشاءاللہ وقتی طور پر ہوگا، کوئی سیریسلی ایشو نہیں بنے گا. اور انشاءاللہ اس ہفتے آپ نے اسپیشلی اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ جو محنت کیے ہوئے ہیں، آپ کو آپ کے محنت کا صلہ ملنے والا ہے. کوئی گڈ مارکس، کوئی گڈ ریوارڈ آپ کو مل سکتا ہے، تو بی ریڈی اور خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلا ورگو. ورگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ کچھ احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کو کوشش یہ کرے کہ اگر آپ کوئی بھی ڈیل، کوئی بھی انویسٹمنٹ، کوئی بھی کاروباری حضرات کے لیے اسپیشلی آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے. اگر کوئی آپ پارٹنرشپ کسی سے کر رہے ہیں تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. بہت اندھا بھروسہ کسی پہ نہ کریں، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی فرینڈ، کوئی بھی عزیز، کوئی بھی رشتہ دار کیوں نہ ہو. اور اس کے ساتھ ہی آنے والے ہفتے میں ازدواجی معاملات پہ اگر ہم بات کریں تو آپ کے ازدواجی معاملات آپ کے اسپاؤس کے ساتھ ٹھیک رہیں گے، لیکن کچھ چیزیں ایکسپوز ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو ہرٹ ہو سکتے ہیں آپ، اور بے چینی ہو سکتی ہے آپ کو. تو بی ویری ریڈی. اور آپ نے یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ آنے والے ہفتے میں کسی تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے بالکل بھی نہ دیں، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا کلوز فرینڈ ہی کیوں نہ ہو. آپ نے اپنے پرسنل معاملات کو خود تک محدود رکھے تو آپ کے لیے اچھا رہے گا. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی تعلیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسپیشلی جو پرائمری لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس ہفتے ان کا دھیان پڑھائی سے ہٹ سکتا ہے، کھیل کود کی طرف ان کا دھیان ہو سکتا ہے. تو یہاں پر والدین کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وقتی طور پر ہوگا. انشاءاللہ وہ خود واپس ٹورڈز ایجوکیشن، ٹورڈز تعلیم، ٹورڈز اسٹڈیز خود بخود آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. بہت زیادہ فاسٹ نہ چلے، گو وتھ دا فلو، جو جیسے چل رہا ہے فی الحال اس کو ویسے ہی چلنے دے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور صحت کے معاملات پہ اگر ہم بات کریں تو صحت آپ کی ٹھیک رہے گی، لیکن جن کو شوگر کا جو مریض ہے اسپیشلی آپ نے رمضان کے مہینے میں یہ کوشش کرنا ہے کہ اپنی دوائیوں کے استعمال ٹائملی کرے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، ورنہ آپ کی صحت تھوڑی بہت ڈسٹرب رہ سکتی ہے. تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. ساتواں برج ہمارا ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے صحت کے معاملات ٹھیک رہیں گے. بالکل کوئی بھی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، صحت آپ کی بالکل ٹھیک رہے گی. اور اس کے علاوہ کاروباری حضرات کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کو صبر کی ضرورت ہے. آپ بہت زیادہ آپ کو فائدہ نہیں مل رہا ہے تو اس میں آپ نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے. آگے جا کر آپ کے لیے چیزیں بہتر ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی ازدواجی معاملات پہ اگر ہم بات کریں تو ازدواجی معاملات آپ کے اسپاؤس کے ساتھ ٹھیک رہیں گے، لیکن تھوڑی بہت جو فائنینشلی کرائسس چل رہے ہیں اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور جتنے بھی آپ کے فائنینشیل پرابلمس ہیں وہ ریزالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو حوصلہ اور صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے آئیں گے، خوب آئیں گے، لیکن تھوڑی بہت آپ کو حوصلہ بھی رکھنا ہے. انشاءاللہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اسپیشلی اس ہفتے آپ کو لو افیئر کے معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہی آپ کے سامنے آئیں گے جس سے آپ ہرٹ ہو سکتے ہیں، تو بی ویری کیئرفل. اور اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے اچھا ہفتہ ہے. محنت اپنی جاری رکھے، آپ کو کامیابیاں لازمی ملے گی اور انشاءاللہ آپ کو تعلیم سے فائدہ ہوگا. اسپیشلی جو ہائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو ہفتہ ہے. تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. 8واں برج ہمارا ہے برج
अक़रब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों के लिए आने वाला हफ्ता इंशाल्लाह सेहत के मामलात आपके ठीक रहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत मौसम की तब्दीली की वजह से आपको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इसके अलावा ज़मीन और जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त अगर आपने करनी है तो उसमें आपको थोड़ी बहुत सॉफ्टली और स्मूथली चलना होगा। कोई भी जल्दबाजी आप करेंगे तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ इज़्दवाजी मामलात आप स्पाउस के साथ बिल्कुल ठीक रहेंगे और इंशाल्लाह घर में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपके तमाम प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली तौर पर आपके हल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले हफ्ते में आपने ये भी कोशिश करना है, स्पेशली अगर आपने वीज़े के लिए कहीं अप्लाई किया था तो वहाँ से आपको कुछ रिस्पॉन्स आ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको फाइनेंशियली फ़ायदा होगा और कोई माली गेन लाजमी होगा। तो खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं 9वें बुर्ज की तरफ, बुर्ज कौस सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस वालों के लिए आने वाला हफ्ता आपके लिए मल्टीपल हफ्ता होगा। थोड़ी बहुत आपको काम की थकावट हो सकती है और ओवर वर्क की वजह से और ओवर थिंकिंग की वजह से सेहत थोड़ी बहुत आपकी डिस्टर्ब रह सकती हैं। तो कोशिश ये करें कि काम की जगह पर आप काम पे फोकस करें, लेकिन आपने ज़्यादा सर पर सवार नहीं करना है। और साथ ही साथ जो शादीशुदा अफराद हैं, इज़्दवाजी ज़िंदगी आपके स्पाउस के साथ ठीक रहेंगे, लेकिन आपने अपना रवैया घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और स्पेशली छोटे बहन भाइयों के साथ कोशिश ये करें कि आपने अपना रवैया सही रखना है। और हो सकता है आपको इस हफ्ते आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे खर्चे जा सकते हैं आपकी तरफ से, और हो सकता है कोई आप घर के रेनोवेशन के लिए कोई खर्चते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कोशिश ये करना है कि फजूल खर्ची नहीं करनी है और अपने सेविंग्स को बिल्कुल भी आपने हाथ नहीं लगाना है। और साथ ही साथ औलाद की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आपको आ सकती हैं, उनके तालीम के हवाले से, उनकी शादी के हवाले से कोई अच्छा गुड न्यूज़, कोई मसरूर करने वाली ख़बर आपको आ सकती है। तो ओवरऑल आपके लिए आने वाला हफ़्ता अच्छा हफ़्ता साबित होने जा रहा है। इंशाल्लाह खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। 10वां बुर्ज हमारा है बुर्ज जैती कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए आने वाला हफ्ता आपको थोड़ी बहुत एहतियात की भी ज़रूरत है। पैसे बहुत ज़्यादा आप खर्चते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले हफ्ते में कोशिश ये करें कि अपने अखराजात को कंट्रोल करके चले तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और इंशाल्लाह पैसे आपको आते रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको खूब पैसे आएंगे, लेकिन आपने सेविंग्स भी अपनी करनी है, क्योंकि यही टाइम है अगर आप सेविंग्स करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ औलाद की तरफ से कोई आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती हैं, उनके तालीम के हवाले से ख्वाह हो सकता है या फिर उनकी शादी के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है, कोई अच्छा घर में प्रोग्राम हो सकता है, मेहमानों की आमद रफ्त हो सकती है, शादी ब्याह का माहौल बन सकता है जिससे आप मसरूर होंगे। और इसके अलावा इज़्दवाजी मामलात में अगर हम बात करें तो इज़्दवाजी मामलात आपके और आपके स्पाउस के बीच में ठीक रहेंगे, लेकिन आपने ये भी कोशिश करना है कि माजी की तल्ख यादों का आप भूलें और आपने आगे की तरफ फोकस करना है। कोशिश ये करें कि अपनी ज़िंदगी में खुशियों से भरा माहौल ख़ुद क्रिएट करें और अपने स्पेशली बात करते हुए अपने अल्फाज पे आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है ताकि आपके अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी ना हो। और इंशाल्लाह ओवरऑल आपके लिए आने वाला हफ्ता पैसों के हवाले से एक अच्छा हफ्ता रहेगा। फाइनेंशियल आपका ग्राफ हाई रहेगा, आपको डिफरेंट ज़रायों से, मुख्तलिफ ज़रायों से पैसे आ सकते हैं और इंशाल्लाह आपका फाइनेंशियल ग्राफ बहुत हाई रहेगा। तो खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा।
11वां बुर्ज हमारा है बुर्ज दल्फ एक्वेरियंस वालों के लिए आने वाला हफ्ता आपके लिए सरप्राइज से बड़ा हफ्ता होगा। पैसे आपको खूब आएंगे। हो सकता है इनामी स्कीम में अगर आपने हिस्सा लिया है तो वहां से आपकी कोई लॉटरी लग सकती है और खूब सारा पैसा आपको आ सकता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस टाइम को गनीमत जानकर अगर आप सेविंग्स कर सके तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा ज़वाजी मामलात पे अगर हम बात करें तो इस ज़वाजी मामलात आपके और आपके स्पाउस के बीच में बिल्कुल ठीक रहेंगे। कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे आपके घर में तो वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, दूर होंगे और आपका फाइनेंशियल ग्राफ काफ़ी हद तक बेहतर होगा। और माली आपका जो इनकम है, स्पेशली इनकम के ज़राए आपके अच्छे होंगे और पैसे आपको खूब आएंगे। और औलाद की तरफ से अगर हम बात करें, स्पेशली जो जोड़े पे औलाद हैं उनके लिए आने वाला हफ्ता आपके लिए अच्छा हफ्ता है। कोई गुड न्यूज़ औलाद की तरफ से आपको सुनने को मिल सकती हैं और इंशाल्लाह कोई गुड कॉल आपको आ सकती हैं जिससे आप अच्छा खासा मसरूर होंगे। कोई गुड न्यूज़ आपको आ सकती है। तो आने वाला हफ्ता एक्वेरियंस आप लोगों के लिए एक अच्छा हफ्ता है। स्पेशली इंशाल्लाह जो कारोबारी हजरात हैं उनका अच्छा खासा आपका फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आपका कारोबार खूब चमकेगा और आप खूब पैसे कमाएंगे और इंशाल्लाह आपका फाइनेंशियल जितना भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ ही लव अफेयर के मामलात पे अगर हम बात करें तो आपके लिए लव अफेयर के मामलात में थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर आपने फास्ट नहीं चलना, स्मूथली और आपको विद द फ्लो जैसे आप स्मूथ जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में औलाद की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तो खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं 12वें बुर्ज की तरफ, बुर्ज हूत पाइसेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे ज़ोडिएक का आखिरी हाउस। पाइसेस वालों के लिए आने वाला हफ्ता आपके लिए एक डिफरेंट हफ्ता रहेगा। डिफरेंट चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रुनुमा होंगे और वो मुख्तलिफ चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसके साथ ही आने वाले हफ्ते में आपको पैसे डिफरेंट ज़रायों से आ सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ये भी कोशिश करना है कि पैसे अगर आपको मिलेंगे तो उसको आपने वाइसली और बहुत ज़्यादा ध्यान से खर्चना है। और आने वाले हफ्ते में आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश ये करें कि इंट्यूशंस पे अपने बहुत ज़्यादा अपने गौर करना है। इल्हामात आपको आ सकते हैं, कोई आपको डिफरेंट इंट्यूशंस हो सकते हैं और कोशिश ये करें कि रूहानियत की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा होगा और जो कि एक पॉजिटिव साइन है। परवरदिगार से क़रीब रहिए, रूहानियत से क़रीब रहिए, इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल हल होंगे। और इसके साथ ही इज़्ज़वाजी मामलात पे अगर हम बात करें तो इज़्ज़वाजी मामलात में थोड़ी बहुत आपको एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश करें अपने अल्फाज का चुनाव आप सोच समझ कर करें और आपने अपने सराउंडिंग्स पे, अपने इर्द गिर्द के माहौल पे भी तवज्जो देना है। और कोशिश ये भी करना है आपने कि स्पेशली गैदरिंग में, किसी मजमे में आपने उतना ही बोलना है जितना आपको उसकी ज़रूरत है। और बहुत ही ज़्यादा आपने इस हफ्ते मोहतात रहना है। एहतियात करें, अपने सेहत का ख्याल रखें। मौसम की तब्दीली की वजह से या वर्क लोड की वजह से आपको बेचैनी महसूस हो सकती है, नींद आपकी डिस्टर्ब रह सकती है। तो आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और स्ट्रेस से बचे तो आपके लिए अच्छा होगा। और इंशाल्लाह परवरदिगार से करीब रहिए, परवरदिगार आपके तमाम मुश्किलात हल फरमाएगा। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। तो ख़वातीनो हज़रात, मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल एस्ट्रोलॉजी विद सुमैया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। वस्सलाम।